Hello, my dear students. Welcome to your science class. In this class, my dear students, we are going to start a new chapter of your science book, and it is about chapter number 11th. And the name of the chapter is Conservation of Plants and Animals. So that's the thing we will understand how we can conserve our plants and animals, how we conserve our biodiversity. What are its role? What is biosphere? What is biodiversity? What is flora? What is fauna? How we are dependent upon each others, how plants dependent upon animals, how animals depend upon human beings, like this is the ecology, this is the system. Okay, so we all know all these things are very very important, it is a part of our life. So how these things preserve, how we can preserve all these things, these are the things we will discuss in this class. So if you want to learn about all these things, so stay tuned for this video, and let's start with introduction. Let's see what is there in introduction. So every living organism on the earth is the member of a dynamic community known as ecosystem. Yes, we all live in this ecosystem. We all are living in this system, that is ecosystem. Okay, an ecosystem is complete unit that consists not only of living creatures but also non-living matters. The earth is the only planet to have life. Yes, the earth is the only planet that have life. Yes, that's why only in the planet earth the life is possible. No other planet has life. Okay, so that's why we live on the planet earth. Okay, so these are the few things that is important. First we have to discuss about ecosystem. Ecosystem means where all living organisms live. Next is the biosphere. Biosphere means the earth is the only planet that have life. The living part is known as biosphere. Biosphere means the living part जहाँ पे हम रह पा रहे हैं. The study of living things in their natural surrounding is called ecology. ये ecology है जब ही हम natural चीजों के बारे में, natural surrounding के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और जो हमारे आसपास की surrounding है यही है हमारी natural environment. यही हमारा है environment, जो हमारा surrounding है. जो हमारा सराउंडिंग है वही है नेचुरल, वो है हमारा इन्वायरमेंट. ओके, जो हमारे आसपास है वो हमारा इन्वायरमेंट है. और बायोस्फीयर में कौन सी चीजें आ जाएगी? लिविंग पार्ट है, जो लिविंग थिंग्स है वो आपका बायोस्फीयर में आ जाएगा, और जो आपके आसपास की चीजें वो आपके इन्वायरमेंट में आ जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट इज बायोस्फीयर. आइए एक एक चीज को अच्छे से देखें कि क्या है ये चीजें. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर से. बायोस्फीयर क्या है? So the part of the earth where life exists is known as biosphere. Biosphere एक ऐसा पार्ट है हमारा अर्थ का जहाँ पे लाइफ है, जहाँ जिंदगी है. एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर, लैंड ऑफ अर्थ, वाटर बॉडीज लाइक रिवर, ponds, ओशंस, ये सारा है हमारा क्या? ये क्या है? ये यहाँ पे क्या करते हैं? ये सारी चीजें आपकी बायोस्फीयर में आ जाती है. ओके, आपका एटमॉस्फेयर है, हमारा लैंड है, हमारा पानी है, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है. बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाएगा. It is a self-regulating system which can be defined as the total sum of living organisms. Every part of a planet Earth where life exists continue the biosphere. Of course, जहाँ पे life exists है वो आपका biosphere है. Okay, अब biosphere में देखिए, biosphere में आपकी क्या चीजें आती है? Biosphere serves as the highest level of biological organization. It begins with the part of a cell and then proceeds to population, species, ecosystem, biomes and finally biosphere. अब इसमें बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन करते हैं एज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं, जो हम डिपेंड करेंगे, जो हम बताएंगे. प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो एक पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी है उधर की. So we can see maximum diversity in forest. हम forest में आपको सबसे ज्यादा diversity देखने के लिए मिलेगी. So region which rich biodiversity are called mega biodiversity centers. जहाँ पे सबसे ज्यादा biodiversity मिलती है वो है mega biodiversity. There are 12 mega biodiversity centers in the world. India is one of the 12 mega biodiversities in the world. मतलब हमारे वर्ल्ड में बात करें 12 बायोडाइवर्सिटीज में इंडिया भी उसमें से आता है, जिसमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है. क्लियर? क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे रिच टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं. सो द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्स स्पीसीज एंड पॉपुलेशंस अलोंग विद द लाइफ सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द इकोसिस्टम्स सच एज क्लाइमेट. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द लाइफ. हमारी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट इकोसिस्टम ऑफ प्लांट्स सच एज
फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट आर द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारे इसी का ही पार्ट है। ओके, सो अब देखिए हम कैसे करें, ओके कैसे ये चीजों के बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेंटेनिंग इकोलॉजी, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, प्रोविजन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करिए। ठीक है, अब देखिए वहां पे स्पीसीज किसको कहेंगे, स्पीसीज क्या होती है, जैसे बायोडाइवर्सिटी आपने क्या पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी में क्या चीजें आ जाएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें आ जाएगी, प्लांट्स एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया, जो भी मिलते हैं वो सारी बायोडाइवर्सिटी में आएगा। क्लियर, सो अब क्या लिखना है, स्पीसीज क्या है, इन द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बट नॉट सीन इन अदर ग्रुप्स, इन अदर वर्ड्स अ ग्रुप of organisms that are capable of interbreeding and producing fertile offspring. For example, deer refer to the family of 34 species, include varieties of deer like ये सारी चीजें, species mean उसकी population, same type of it, okay? तो वहां पे वही चीज लिखी गई है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक पाई जाए वो एक स्पीसीज को बताते हैं। क्लियर, अब स्पीसीज में भी आपकी कुछ एंडेमिक स्पीसीज होती है, एंडेमिक स्पीसीज क्या होगी, एंडेमिक है आपके पास, एक्सटेंट स्पीसीज है, वर्नेबल स्पीसीज है, तो मतलब ये किस स्पीसीज के बारे में बात किया गया है, सो द स्पीसीज व्हिच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज मतलब वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज में पाई जाती है, इसलिए इसको हम एंडेमिक स्पीसीज कहती है। दे आर नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स, आर इंडियन बायोडाइवर्सिटी इज वेरी रिच इन रिलेशनशिप टू एंडेमिक स्पीसीज, तो हमारी एंडेमिक स्पीसीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ये। क्लियर हुआ, तो ये हमारी एंडेमिक स्पीसीज है, क्लियर, जो हमें पर्टिकुलर एरियाज में पाई जाती है। नाउ जैसे अगर हमने बात किया आपकी ये जो वाइल्ड मैंगोज है ये फाउंड होते हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज में ही पाई जाती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा आपको, सुंदरबन आपको फॉरेस्ट ये आपको वेस्ट बंगाल साइड ही मिलेंगे, ये सारी चीजें। फिर है आपकी एक्सटेंट स्पीसीज, ये क्या है, जो एक्सटेंट हो गई है, मीन्स जैसे डायनासोर है, द स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ इज नोन एज एक्सटेंट, अब वो खत्म हो गई है, विलुप्त हो गई है, एक्सटेंट हो गई है, जैसे डायनासोर है। इट इज रेफर टू द डेथ ऑफ द लास्ट मेंबर ऑफ द स्पीसीज, जो लास्ट मेंबर जो भी था ना उसके स्पीसीज का वो भी डेथ हो चुका है। द स्पीसीज बिकम एक्सटेंट व्हेन दे आर नो लॉन्गर एबल टू सर्वाइव बाय चेंजिंग कंडीशन, ये अब सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे अपनी चेंजिंग कंडीशन के हिसाब से, दैट मीन्स ये बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं। सो स्पीसीज बिकम एक्सटेंट व्हेन दे कैन नॉट reproduce due to the poor health, age or lack of individuals, of course. Next is endangered species. Endanger कौन सी है, जैसे आपके बंगाल टाइगर्स है, so the species which are facing the risk of extinction they are called endangered species. ये endangered species होती हैं जो कौन सी, जिनको अभी रिस्क है, किसका, ये अभी रिस्क पे है, ये अभी एक्सटेंड नहीं हुए, बिल्कुल खत्म नहीं हुए, ये खत्म होने के चांसेस है इनको। They are plants and animal, they are on the verge of extinction, ये मतलब खतरे की तादार पे है। ऑलमोस्ट 45 क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज अभी इंडिया में पाया करते हैं, जो शायद कुछ टाइम में खत्म ही हो जाए। क्लियर, according to the survey the growth of human population for the last 1000 years has decreased the number of टाइगर्स, जो कम हो गया ऑलमोस्ट, आपने खुद देखा है कि कुछ टाइगर्स है, कुछ लायंस की पॉपुलेशन, कुछ और ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन कम हो गई है और वो रिस्क पे आ गए हैं, सो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। वर्नेबल स्पीसीज में कौन से हो जाएंगे, सो स्पीसीज दैट एग्जिस्ट इन लो नंबर्स एंड मे बिकम्स एंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इनके ना नंबर्स कम हुए, रिस्क में नहीं गए हैं, ये नंबर्स इनके कम होते जा रहे हैं, और कम होंगे तो ये एंडेंजर हो जाएगी, एंडेंजर के बाद मे बी वो एक्सटेंट हो जाए, और जो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे पाया करती है एक पर्टिकुलर, वो एंडेमिक है, एंडेमिक एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन पे पाया करती है, एक्सटेंट मींस खत्म हो जाना, एंडेंजर मींस एट अ रिस्क, और वर्नेबल मींस डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। नाउ फ्लोरा एंड फौना मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स एनिमल्स कहाँ कहाँ हमें मिलते हैं, कहाँ कहाँ वो पाया जाएंगे। So the natural environments of plants and animals where they live, breed and multiply is known as their habitat. Habitat में रहते हैं वो, multiply करते हैं अपने आप को, so the species of the plants living on the habitat is called flora. वही तो flora है, flora means plants and fauna means animals. So for example, teak and jamuns are the flora of the Panchmari Biosphere Reserve. The species of the animals living in their habitat is known as fauna. Fauna में क्या आ जाएगा आपका, आपके animals आ जाएंगे। ठीक है,
सो इंडिया में आपको बहुत लार्ज वैरायटी के फ्लोरा फौना मिलते हैं, ऑलमोस्ट 12 मेगा बायोडाइवर्स नेशन वर्ल्ड में से उसमें इंडिया एक है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पे बहुत सारे फ्लोरा फौना है ना। माइग्रेशन क्या हो रहा है, इनका माइग्रेशन कैसे हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपने देखा होगा एनिमल्स ट्रैवल कर लेते हैं। सर्दियों में गर्मियों वाले एरिया में चले जाते हैं, वो गर्मी के टाइम पे सर्दी वाले एरियाज में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर needs they can able to travel. So migration is the movement of the animals with the birds in the massive in a search of the food and water. Of course migration होता है जब वो move करते हैं एक जगह से दूसरी जगह in the search of food and water. It is the adaptations to expect from the hard condition. ये क्यों हो रहा है, hard condition से बचने के लिए, ठीक है। सो इसकी वजह से वो अपने habitat से दूर चले जाते हैं, ठीक है। So it is the adaptation to escape the hard condition of habitat and return to the habitat when the conditions become favorable. So ये क्या करते हैं, अभी तो चले जाते हैं, फिर जब इनको लगता है कि कंडीशन अभी अच्छी है, फेवरेबल है उनके हिसाब से, तो वापस आ जाते हैं। So the birds living in this regions migrates to the warmer place in the earth. Of course जो मैंने आपको बताया सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे साइबेरिया है वहां पे ठंड पड़ रही है, तो गर्मी वाले एरियाज में साइबेरियन क्रेन्स है, ये इस तरीके की है। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत ठंड हो जाती है, तो वो गर्म वाले वार्मर प्लेसेस में चले जाते हैं। तो ये जैसे हम लोग हैं, हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, चेंजेस लाते हैं, माइग्रेशन करते हैं, वैसे बर्ड्स एनिमल्स भी करते हैं। नाउ पोचिंग क्या है, ये दैट मीन्स इनलीगल हंटिंग कर रहे हैं हम एनिमल्स को, वो पोचिंग कहा करते हैं। बैन है तब भी हम एनिमल्स को मार रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसको स्किन चाहिए, उनके स्किन लेदर के हमें जैकेट्स बनानी है, कोट्स बनाने हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स बनाने हैं, शूज बनाने हैं। सो ये क्या हो रहा है, पोचिंग हो रहा है, एनिमल्स को मारा जा रहा है इलीगली। तभी तो इनकी पॉपुलेशन कम हुई है, ऐसा थोड़ी ना अपने आप से इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है ना। सो पोचर्स हंट्स एनिमल्स फॉर देयर वैल्यूड पार्ट्स, जस्ट लाइक आप बात करें जिससे वो उसके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल डियर को हंट किया जाता है लेदर के लिए। बहुत सारी ऐसी फ्लोरा फोना अब आज के टाइम पे पोचिंग की जा रही है उनके स्पीसीज के लिए, जैसे राइनोस के स्किन से देखो उनके दांत है, उनको ले लिया जाता है, उनकी स्किन से यूज किया जा रहा है, ठीक है। उनके बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स को यूज किया जाता है। ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर हु कैन कंजर्व एंड हु कैन सी कि इनमें थ्रेटनिंग तो नहीं हो रहा है कुछ, है ना, इनकी पॉपुलेशन कम तो नहीं हो रही है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, दैट इज IUCN। ये काम करती है इस चीज में कि ये हमारी पॉपुलेशन जो फ्लोरा एंड फौना की, ये खत्म तो नहीं हो रही है, इनका कोई वो तो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, मिसमैनेजमेंट, है ना, किस तरीके से। सो यहाँ पे ये आपकी कुछ कंडीशंस ले रखी है, देखिए। एक्सटेंड मीन एक्सटेंड इन द वाइल्ड, क्रिटिकल डेंजर मीन्स जो डेंजर में है, वल्नरेबल मीन्स नियरली थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न मीन्स डाटा डेफिशिएंट, ये नाम इन्होंने दिया है। अब एक रेड बुक डाटा होती है, इसमें ना रिकॉर्ड किया जाता है जितने भी हमारे एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो अभी डेंजर में, उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाती है इन रेड बुक डाटा में, ठीक है, जो अभी डेंजर में है, जो एक्सटेंट होने के जिनके चांसेस है। तो ये होती है रेड बुक डाटा जिसमें इनका रिकॉर्ड किया जाता है। फिर अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई हो रही है, क्यों, फॉर अवर यूजेस, ओके, फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, फॉर projects, for highways, for metros, for constructions, everything we are cutting trees. So several species of plants and animals have become extinct. The major cause of the biodiversity, the major cause for loss of biodiversity is the deforestation. ये major cause है deforestation, मतलब cutting down of the trees and all these things. So the cutting down of the trees or the forest of a large scales due to the man-made or the natural cause is called deforestation. This is the deforestation in which we are cutting all these things for our personal uses. Now the causes of deforestation. First is the man-made cause, second one is the natural cause. So the forest trees are cut down to obtain wood as a fuel for making furniture, doors, windows and papers. Of course man-made cause means due to the man-made, the things are going on, the wood are cutting down, trees are cutting down due to own benefit, due to which they can get benefit. Okay, now natural causes are like sometime it happen कि ड्राफ्ट फ्लड आ गया जिसकी वजह से ट्रीज कट डाउन हो गए, अर्थक्वेक आ गया, है ना। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे
एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से? सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे पास जितने फॉरेस्ट प्रोडक्ट वाली चीजें हैं वो कम होती जा रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्लांट्स ऑब्जॉर्व कर लेते थे कार्बन डाइऑक्साइड को, अब प्लांट्स ही नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कैसे हो पाएगी, ये सारी चीजें हैं। सो ट्रीज प्रिवेंट करते थे सॉइल इरोजन को, सॉइल को जो टॉप लेयर सॉइल की उसको उड़ने नहीं देते थे। अब टॉप लेयर सॉइल को प्रिजर्व कौन करेगा, है ना, हेवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग फ्लड के कारण आपकी ये सॉइल उड़ जा रही है, खत्म हो जा रही है। तो ये सारी चीजें थी, और हमें क्या करना चाहिए, हमारे अपने एनवायरमेंट को हमें कंजर्व करना चाहिए जितना हम कर पाए, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो ये थी क्लास, ये था आपका चैप्टर। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर एज द चैप्टर गेट्स ओवर। नो, द चैप्टर नॉट गेट्स ओवर, चैप्टर इज थोड़ा और ओके, जिसमें अभी हमने 2-3 चीजें और कवर करनी है, तो ये कवर हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए 2-3 चीजें और में क्या है, अब यहाँ पे देखिए, मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कौन कौन से मेजर्स को हम ले सकते हैं जिससे हम अपनी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा पाए। क्लियर? सो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी गई है, जैसे कि देखिए सबसे पहले स्पेशल अटेंशन दे किन चीजों पे, जो अभी कैटेगरी है, जो एंडेंजर वर्नेबल कैटेगरी में जो भी अभी प्लांट्स एनिमल्स है, इन पे ध्यान दिया जाए। क्लियर? For the land area allotted by the government for conservation of flora and fauna should be utilized properly, जो गवर्नमेंट को एरिया दिया गया है उसको अच्छे से काम किया जाए उस एरियाज पे। The product obtained from wild plants and animals for the purpose of international trade should be done only up to the extent that is not affected the endangered species, of course उनकी species को ना इफेक्ट हो। नेक्स्ट अब पोचिंग वगैरह को रेगुलेट किया, हंटिंग कोई ना कर पाए, ये चीज पे ध्यान दिया जाए। The government has established the following types of areas to conserve forest and wildlife. Of course, हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है इन चीजों को लेके। तो ये कुछ मेजर्स है जिससे हम अपना फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। फिर आपने देखे हैं बायोडाइवर्सिटी या बायोस्फीयर पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं हमारी गवर्नमेंट में। ये एक ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं हमारे फ्लोरा फौना के, जो प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, so there are the large protected areas of a land in which the wildlife is protected, जहां ये जानवर फील कर सकते हैं प्रोटेक्टेड। ये ऐसे एरिया, इट इन्वॉल्व ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग ऑफ सेटलमेंट इन द आउटर जोन। ऑफ कोर्स इन एरियाज में ना, आउटर जो इसका आउटर मोस्ट जोन है वहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वहां आप बिल्डिंग बना सकते हैं, बट इनका बफर जोन, इनर जोन में ये यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ ये सिर्फ एनिमल्स आपके वाइल्ड लाइफ का एरिया होगा। ठीक है, सो ये होता है, इनमें ना कुछ जोन होते हैं, देखो यहाँ पिक्चर्स में भी बनाए, ये बीच वाला एकदम कोर जोन है ये आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका ये बफर जोन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर वाला, और लास्ट में आपका ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे आप अपनी कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग्स वगैरह बना सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो देखो वही चीज लिखा था, इनर मोस्ट जोन इज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज द कोर जोन, जो सबसे अंदर का जोन है, इनर मोस्ट है, वो आपका कोर जोन है। इट इन्वॉल्व द स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कोर है ना, ये बिल्कुल अंदर का, तो यहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट आपकी पास वो रहेगी गाइडलाइंस, यहाँ पे आप नहीं बिल्कुल आ सकते, हंटिंग कर सकते या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ को हार्म नहीं पहुंचा सकते। द इनर जोन जिसको हम बफर जोन कहते हैं, जो मिडल वाला जोन है ना, इनर वाला तो कोर हो गया, मिडल वाला जो आपके कोर के बाद आएगा वो आपका बफर जोन होगा। इट इन्वॉल्व लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज, यहाँ पे लिमिटेड है ह्यूमन एक्टिविटीज, कोर में तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज ही आप कर सकते, आपका बफर में लिमिटेड हो जाएगी आपकी एक्टिविटीज। द आउटर मोस्ट जो एरिया है जिधर बाहर का है वो आपका ट्रांजिशन जोन होगा, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे हाउसेस, ट्राइबल पीपल्स यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके कुछ बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बना रखे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड में, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है आपके वेस्ट बंगाल में। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व ही इसलिए बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ दैट इज देयर, जो वाइल्ड लाइफ है उनकी प्रिवेंशन के लिए बनाए गए हैं। तो ये जोन बेटा ध्यान रख लें, ट्रांजिशन, बफर एंड कोर। Core is the innermost, then buffer zone, limited human activity, and transition zone. You can do the human activities are prohibit here. Okay, not prohibit here. Okay, they can do non-destructive human activities in this transition zone. Now, the wildlife sanctuaries and the national park is also there.
ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स भी बनाए गए हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। टू अटेन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश सम प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क। इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स बनाए गए यही बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन के लिए। दे हार्बर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स फाउंड लोकली, जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ को प्रिवेंट करने के लिए बनाए करते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बट नेशनल पार्क इज प्रोवाइडेड ह्यूमन रिक्रिएशंस एंड एंजॉयमेंट। ऑफ कोर्स नेशनल पार्क में ह्यूमन मतलब हम लोग जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थोड़ी प्रोटेक्टेड होती है एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क्स। ओके, तो यहाँ पे कटिंग वटिंग ये सब आप नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, नाउ प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी है? संजय गांधी भरतपुर बर्ड सेंचुरी, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरीज हरियाणा। फिर आपकी प्रोमिनेंट कुछ नेशनल पार्क्स कौन से हैं आपके? कॉर्बेट नेशनल पार्क, खाना नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा, सुंदरबन, सारे नाम याद होने चाहिए। और इसका डिफरेंस ध्यान रखिए, बायोस्फीयर एंड वाइल्ड लाइफ का। बायोस्फीयर में क्या आता है? इट इज अ स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, ये बायोस्फीयर लार्ज एरियाज में होता है। इट इज स्प्रेड ओवर अ कंपैरेटिवली स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड, ये स्मॉलर एरिया में होता है। नेक्स्ट बात करें आपका बायोस्फीयर का, इट इज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए। ये बनाया गया है किसकी? प्रोटेक्शन सिर्फ एनिमल्स के लिए, वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है बायोस्फीयर में ट्राइबल पीपल्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ट्राइबल पीपल भी इसका पार्ट होते हैं, बट यहाँ पे ट्राइबल पीपल नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कल्टिवेशन ऑफ लैंड आर अलाउड इन बायोस्फीयर, ऑफ कोर्स उसमें अलाउड होता है, बट आपका ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड नहीं होता वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, ये डिफरेंस है, याद होना चाहिए। मतलब ये ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज कम्पेयर टू बायोस्फीयर रिजर्व के। बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क्स इतने ज्यादा प्रोहिबिट एरियाज नहीं होते हैं, क्लियर ना। जू एंड जूलॉजिकल पार्क्स, ये तो गए हो आप जू वगैरह में, जहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है? एक उनकी आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई करती है, जैसे वो वहां रहते थे फॉरेस्ट में, उनकी आर्टिफिशियल कंडीशन जू में बनाई करती है ताकि लोग आके देख पाए कि वो एनिमल दिखते कैसे हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको टाइगर लायंस को देखना है तो आप जंगल तो नहीं जाओगे, पर जू जरूर जा सकते हो। जू में आप दूर से देख पाओगे कि वो एनिमल्स, वो टाइगर्स कितने बड़े होते हैं, वो एलिफेंट्स कितने बड़े होते हैं। तो इनकी क्या करती है, आर्टिफिशियल कंडीशंस उनकी ऐसी केज वैसे बनाते हैं, उनको खाना पानी सब कुछ दिया जाता है। फिर कुछ बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, ये क्या है? बोटेनिकल गार्डन्स, तो दे कैन बी टर्म एज जूज ऑफ प्लांट स्पीसीज। अच्छा, एक तो जूलॉजिकल पार्क जहाँ पे एनिमल्स की लिए बनाया करते हैं, बोटेनिकल गार्डन में ये जू है प्लांट्स का, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको प्लांट्स का कलेक्शंस देखने के लिए मिलेगा। दे कंटेन सीड्स, बैंक्स एंड कंजर्व रेयर एंड थ्रेटनर प्लांट स्पीसीज, यहाँ पे भी जो प्लांट्स थ्रेटनिंग में है उनको कंजर्व किया जाता है बोटेनिकल गार्डन्स में। They can play an important role in the research regarding plantation and cultivation में हम यूज करते हैं। The botanical garden enhance the greenery of a particular place, एक particular place की greenery को define करते हैं। Botanical garden have been designed to conserve the threatening species of plants, तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट बहुत तरीके के बोटेनिकल गार्डन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सो जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स क्लियर हुआ? क्लियर, ग्रेट। अब यहाँ पे ये सारे आपके बोटेनिकल गार्डन्स है, आपको लाल बाग बेंगलोर में है, ओके, बृंदावाना गार्डन मैसूर में है, बृंदावन गार्डन, ओके, एंड आपके गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन तमिलनाडु में है। फिर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर को हम रिसाइकल कैसे किया करेंगे, कैसे कर सकते हैं? मींस पेपर को हम फिर से यूज कर पाए, इसको रिसाइकलिंग कहेंगे। सो पेपर इज मेड फ्रॉम द वुड पल्प दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड ऑफ अ ट्री, वुड पल्प से बनता है, दैट मीन्स जो आप यूज कर पाते हैं। It has been estimated about 18 full grown trees are required to made 1 ton of a paper। देख रहे ना, 18 trees का यूज किया जाएगा 1 ton या 1 टन ऑफ पेपर को बनाने के लिए। समझो इतना सारे ट्रीज को यूज किया जा रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जितनी भी पेपर्स की चीजें हैं उनको रिसाइकल करें, क्लियर? सो इट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। नाउ रिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मतलब प्लांटिंग ट्रीज, okay, deforestation, cutting down the trees, reforestation, planting trees. So the process of restoring the area of forest which are destroyed earlier by planting more and more trees, ये ऐसे areas को restore किया जाता है जो पहले जिसमें कटिंग हुई है,
Clear? So we should plant the trees of same species which can be cut down from the forest. Okay? अब यहाँ देखिए नेचुरल रिफॉरेस्टेशन क्या है, नेचुरली जब हम उगाया जाए. सो इफ द एरियाज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम इट स्टार्ट रिस्टोरिंग इटसेल्फ बाय नेचुरल ग्रोन ऑफ ट्रीज. यस, अगर उस एरिया को थोड़े टाइम तक हमने अनडिस्टर्ब रखा, नेचुरली वहां पे ग्रो कर लिए जाते हैं प्लांट्स, क्योंकि आपको पता है प्लांट सीड से कहीं गिर गए उग जाते हैं वहां पे अपने आप ही. ठीक है, सो नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होता है. और हम कैसे कर सकते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होता है, जिससे क्या है, इस एक्ट से क्या एम किया गया था कि हम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन करेंगे फॉरेस्ट का. इसमें ऑलमोस्ट परसेंटेज टारगेट किया था 30% तक का हम फॉरेस्ट कवर करेंगे. ओके, सो ये चैप्टर भी हमारा डन होता है, खत्म होता है. होप सो ये जो चैप्टर था ये आपका क्लियर है. अब हम मिलेंगे आपसे इन द नेक्स्ट क्लास ऐसे ही नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.